We will firstly start with the basic components of a fermentation process. Apart from the requirement of a bioreactor, there are so many requirements required to complete that particular fermentation process so that a product can be formed. So basically we will discuss that only, and then we will go for the batch fermentation as well as the continuous culture fermentation. So if we talk about how many components or how many parts are there in a fermentation process, so basically it consists of 6 major components starting from the formulation of media. So I will explain it in detail. So a basic requirement for fermentation is the fermentation medium, which is responsible for the growth of the fermentating organism. So for that, a fermentation medium can be a solid or semi-solid or liquid. Liquid media is known as broth, and on an industrial scale, semi-liquid or broth are preferred for large-scale product formation. So that fermentation medium should be rich in carbon source, nitrogen source, vitamin source and mineral source. There are wide variety of different carbon as well as organic and inorganic nitrogen sources which has to be supplemented into the fermentation medium so that it will increase the growth of the fermentating organism and therefore it will ultimately increase the product yield. So the first requirement is the fermentation medium. So basically the formulation or the composition of the fermentation medium or the production medium depends on what kind of product you want to manufacture. For example, if you want to produce proteases, that is for degrading proteins, it is an enzyme responsible for the degradation of proteins. So for that, your fermentation medium should be rich in protein-rich substrate. And if you want to produce amylase, so the fermentation medium should be rich in starchy substrate. So it all depends on what kind of product we want. अगर मैं बात करूं कि आपको चाहिए प्रोटीएज, तो प्रोटीएज क्या है? एक प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम है. तो वो कब रिलीज करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जब उसे हम वैसा सबस्ट्रेट देंगे, उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा. और अगर उसे सर्वाइव करना है उस ग्रोथ मीडियम में, उस एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करेगा? वो रिलीज करेगा प्रोटीएज सो दैट उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कंटिन्यू रह सके. लाइकवाइज अगर आपको अमाइलेज प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको स्टार्ची सबस्ट्रेट देना पड़ेगा. और इसके अलावा अगर आपको सेल्यूलेज प्रोड्यूस करना है तो आपको सेल्यूलोजिक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो ये जो फर्मेंटेशन मीडियम का कॉम्पोजिशन है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू प्रोड्यूस. सेकेंड पार्ट आता है, आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन मीडियम इट शुड बी स्टरलाइज्ड सो दैट you can inoculate your organism of interest, because we know that there are so many microorganisms in our surrounding, and if we skip the sterilization part, then how we will inoculate our interest of bacteria, because there must be already so many microorganisms residing in that production medium. So second step होता है कि जो भी आपने formulate किया है production medium, उसको आप प्रॉपरली स्टरलाइज करें सो दैट किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्रोडक्शन मीडियम में ना रहे. और उसके बाद आप जो भी अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंजाई हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, आपने जो चूज़ किया है आप उसमें इनोक्यूलेट कर सकें. तो सेकेंड जो होता है वो होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस. उसके बाद आता है द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्टिव प्योर कल्चर. अब फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन मीडियम हो गया, हमने उसे स्टरलाइज कर दिया. अब हमें क्या चाहिए? फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म चाहिए. तो फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म शुड बी ऑफ प्योर कल्चर. मिक्स्ड कल्चर से हम जनरली अवॉइड करते हैं अनलेस इट इज़ नेसेसरी. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए? प्योर कल्चर होना चाहिए एकदम सफिशिएंट क्वांटिटी में, बिकॉज हमें पता है कि हम इसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करा रहे हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर्स में प्रोड्यूस करा रहे हैं. तो इसीलिए फर्मेंटर्स में प्रोड्यूस कराने के लिए हमें उतना क्वांटिटी भी रिक्वायर्ड होता है. तो थर्ड क्या है, हमें अपना जो फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म है इट शुड बी इन हायर क्वांटिटीज़. उसके बाद आता है द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन फर्मेंटर अंडर ऑप्टिमम कंडीशन. नाउ आफ्टर द formulation of production medium, its sterilization, after the growth of pure culture in sufficient amount, now it is the time for the fermentation process to carry out the production of the required product. So क्या होता है, जैसे ही हमने fermentation media डाला
फर्मेंटर में या बायोरिएक्टर में। उसके बाद क्या किया हमने, उसको स्टरलाइज किया। स्टरलाइज करने के बाद में अपना जो फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म था उसे इनोक्यूलेट किया। देन इट इज़ इंक्यूबेटेड एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड फॉर सफिशिएंट इंक्यूबेशन टाइम, सो दैट जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करे और जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो रिलीज आउट हो सके। उसके बाद आता है जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसे एक्सट्रैक्ट आउट करना थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। एंड उसके बाद आता है जिस मीडिया से आपने प्रोडक्शन किया है उस मीडिया को आपको प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा, प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ भी करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए जो भी इफ्लुएंट रिलीज होता है, अगर इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं यूज़ किए हैं, अगर उसमें कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइज़र इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो बेसिकली आई होप आपको ये 6 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं टू कैरी आउट अ फर्मेंटेशन प्रोसेस टू फॉर्म अ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल आपको समझ आया होगा और आपने इसके जो की पॉइंट्स हैं वो नोट किए होंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं एक फ्लैश कार्ड आज ही मोस्ट प्रॉब्ली इवनिंग में मैं रिलीज़ कर दूंगी कि कौन कौन से जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं एक फॉर्मुलेशन करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। कार्बन सोर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन सोर्स क्या होते हैं, कौन कौन से मिनरल सोर्स, कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स लिए जाते हैं, इसका मैं एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन मेमोराइज इट, बिकॉज द कार्बन सोर्सेज एज वेल एज द प्रोटीन सोर्सेज ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसका चार्ट मैं मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग तक मैं अपलोड कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। नाउ प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द different components involved in the fermentation process. So now we will talk about that how many ways a fermentation process can be carried out. So basically fermentation may be carried out as batch process or continuous process or fed batch process. So we'll discuss one by one. Now if we talk about the batch culture, so basically batch culture is a closed culture system, and in this closed culture system, what is the defining feature of batch culture? The defining feature of a batch culture is that it contains a limited amount of nutrient. It means कि आपने इनिशियली जब स्टार्ट किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो इनिशियली ही जितना फर्मेंटर में आपने प्रोडक्शन मीडियम या फर्मेंटेशन मीडियम डाल दिया है, उसके बाद में इन बिटवीन द फर्मेंटेशन प्रोसेस आप अलग से कहीं से मीडिया उसमें नहीं डाल रहे हैं। जैसे आपने ये फर्मेंटर है स्टार्ट किया फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो आपने सपोज 10 लीटर्स ऑफ प्रोडक्शन मीडियम डाल दिया है, उसके बाद में इन बिटवीन कोई और मीडिया इसमें नहीं जाएगा, यही फर्मेंटेशन मीडियम जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ बैच कल्चर इज दैट whenever the organism is inoculated into the fermentation medium, that is the fermentating organism, it goes through the 4 different phases. We will discuss it. I am again repeating, the key point is that कि जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोक्यूलेट करते हैं बैच फर्मेंटेशन में, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो 4 फेजेस से होके गुजरता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से फेजेस। सो इट इज़ the lag phase, log or exponential phase, stationary phase, and then the declining phase. So the first phase is this lag phase. Lag phase is also known as the time of adaptation, because जैसे ही हम fresh fermentation medium में कोई भी micro organisms को inoculate करते हैं, so it takes time to multiply, because इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग नए जगह पे जाते हैं, नए एनवायरनमेंट पे, न्यू प्लेस, न्यू पीपल, तो हमें भी थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप होने में, वहाँ पे एडजस्ट होने में, पूरी तरह से वहाँ पे नॉर्मलाइज अपना जो डेली रूटीन है उसे करने में। लाइकवाइज जो भी फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग ऑल ऑफ अ सडन किसी फर्मेंटेशन मीडियम में डाल देते हैं जिसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अलग है, और इसीलिए क्या होता है, इट टेक्स टाइम टू मल्टीप्लाई एंड टू इंक्रीज इट्स नंबर, सो दैट इज़ नोन एज लैग फेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोमास कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही लो है और कुछ हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा है टाइम के साथ।
लेकिन जैसे ये टाइम बढ़ता है, यू कैन सी हियर एकदम से जो मल्टीप्लिकेशन है या जो बायोमास कंसंट्रेशन है, इट इंक्रीजेज रैपिडली, एंड दैट फेज इज नोन एज लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज. Now one mathematical expression is here, that is, in the log or exponential phase, the increase in the biomass concentration, that is, you can see here the increase in the biomass concentration gradually in the log phase, it is proportional to the initial biomass concentration. That is, the initial biomass concentration can be denoted as dx by dt, which is directly proportional to the initial biomass concentration. So x क्या है? X is the initial concentration of the microbial biomass and it is represented as gram per decimeter cube, and the dt is time in hours and d is the small change in the microbial biomass. So अगर हम बात करें कि जो एक्सपोनेंशियल फेज है उसमें जो बायोमास इंक्रीज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी इनिशियल बायोमास कंसंट्रेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी एक्स. और अगर हमें पता है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो एक कांस्टेंट डालना होगा, देन द कांस्टेंट इज दिस म्यू, एंड दिस म्यू इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. Now let me repeat again. This dx by dt is the small change in the microbial biomass concentration, and the increase in the biomass concentration, that is, this dx and dt is directly proportional to the x. What is x? X is the initial biomass concentration. So जैसे जैसे initial biomass concentration जो है वो बढ़ेगा, it means कि जो maximum जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ हो रहा है, and that is reached only in the log or the exponential phase. तो हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट डाला जाता है. सो दिस इज म्यू, एंड म्यू इज नोन एज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, एंड इट इज द बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ द बायोमास एंड टेक्स द यूनिट पर आवर्स. अब अगर इसी वाली इक्वेशन को हम क्या करें, हम इंटीग्रेट करें, तो व्हाट वी विल गेट इज this equation, that is xt is equals to x0 e to the power mu t. It means कि जो हमारा x0 है, ये दिख रहा है जो आपको x0, it is the initial or the original biomass concentration, and after time t the original biomass concentration will be xt, and t is the time interval in hours and e is the base of the natural logarithm. तो ये वाला जो इक्वेशन है उसको भी याद रखना है कि it is the log phase इक्वेशन ऑफ द बैच कल्चर. अब अगर हम लोग प्लॉट करें नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बायोमास कंसंट्रेशन टाइम के अगेंस्ट में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. तो ये भी याद रखना है. अब अभी तक हमने बात करा लैग फेज की, लॉग फेज की. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है एक डिसेलरेशन फेज या फिर स्टेशनरी फेज. तो डिसेलरेशन और स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म अपना मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है, दैट फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स मेटाबॉलिक मशीनरी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट. और उसके बाद में क्या होता है, हमारा ये जो फर्मेंटेशन मीडियम है, इसमें फर्मेंटेशन मीडिया है एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिलीज हो रहा है तो वो भी इसी मीडियम में रिलीज हो रहा है. तो क्या हो रहा है, रिलीज जैसे जैसे टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होने लग जाएंगे. बिकॉज मेटाबॉलिज्म मशीनरी, उसका मेटाबॉलिक मशीनरी एक्टिव है, वो क्या कर रहा है, रैपिडली कंज्यूम कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को, एंड देन इट इज़ कन्वर्टिंग इट इनटू द डिजायर्ड प्रोडक्ट. सो क्या हो रहा है, टाइम के साथ में ग्रेजुअली जो न्यूट्रिएंट है वो डिक्रीज होते जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. सम बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विथ टाइम विच इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सीज इन दी ग्रोथ ऑफ दी फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो ग्रोथ होता है वो सीज कर देता है जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को. तो एक टाइम ऐसा आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो लॉग फेज है उसके बाद में जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक गया है. यानी ऐसे चला फिर ऐसे गया, उसके बाद में ये जो ग्रोथ है इट बिकम्स स्टेशनरी. बिकॉज इसके दो रीज़न हैं.
सबसे पहला तो कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देन द एक्सक्रीशन ऑफ द माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, यानी हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इसीलिए क्या होता है, इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द सेसेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज टाइम के साथ में देयर इज़ अ डिप्लीशन ऑफ मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनटू द मीडियम, और इसी को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लिमिटेशन। और जो मैं बोल रही थी कि जो बाई प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गए हैं प्रोडक्शन मीडियम में, दैट इज़ नोन एज टॉक्सिन लिमिटेशन। और यही रीज़न होता है, यानी कि ये जो स्टेशनरी फेज़ है उसके दो रीजंस हैं। सबसे पहले तो सबस्ट्रेट लिमिटेशन, ये भी आ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन में, सबस्ट्रेट लिमिटेशन या लिमिट, और उसके अलावा जो आता है वो आता है टॉक्सिन, यानी जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को समहाउ इन्फ्लुएंस करते हैं। So we have discussed the different growth phases of the fermentating organism in a fermentation process, particularly in batch culture. हमने देखा 3 phases जो होते हैं एक fermentating organism के during the batch culture, वो हमने डिस्कस किया. Now one more key point, what commercial industries do is they reduce the lag phase, because अभी हमने देखा कि ये जो लैग फेज है यानी इनिशियल टाइम ऑफ एडेप्टेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेता है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोक्यूलेशन इनटू द फर्मेंटेशन मीडियम, तो इस टाइम को इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, कम करने की कोशिश करती हैं, बिकॉज अगर ये ही बहुत लंबा चलेगा तो जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फेज में बनना है, दैट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। एंड इंडस्ट्रीज़ क्या प्रेफर करती है, इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटो ही होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाना है एक तो बल्क में बनाना है एंड इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट दे कैन बी कमर्शियलाइज्ड सून, और जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिक्वायरमेंट वो भी फुलफिल हो सके। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, जो लेंथ ऑफ द लैग फेज है उसको रिड्यूस करती हैं जितना भी पॉसिबल हो, एंड तभी जाके जो प्रोडक्ट है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सिंथेसाइज हो सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा बैच कल्चर, जिसमें क्या था, इनिशियल लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई था, इनिशियल प्लस लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई था जो कि एक टाइम तक प्रोडक्ट बनाता था। उसके बाद में वी हैव सॉ दैट कि जो एक्सपोनेंशियल फेज है अल्टीमेटली 2 things happened there. The first one is the nutrient limitation as well as the toxin limitation. यानी एक्सपोनेंशियल फेज ख़त्म होते तक क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो डिप्लीट हो गए, बिकॉज हमने इनिशियल और न्यूट्रिएंट जो था वो लिमिटेड ही सप्लाई दिया था, हमने इन बिटवीन सप्लाई नहीं दिया था। अगर हम 10 लीटर मीडिया के साथ में काम कर रहे थे तो हमने इन बिटवीन में कोई मीडिया नहीं डाला था। इसीलिए क्या होता है, बैच कल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ड्यूरेशन है वो नहीं होता है। कंटिन्यूस कल्चर में यही डिफरेंस है। अगर आपको इजी मैनर में याद रखना है तो आप एकदम ध्यान से सुनिए कि द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज प्रोलॉन्ग्ड इन दिस कंटिन्यूस कल्चर, यानी हाउ इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड, ड्यू टू द एडिशन ऑफ द फ्रेश मीडियम टू द वेसल। इट मीन्स कि ये जो हमारा फर्मेंटेशन का जो फर्मेंटर है या बायोरिएक्टर है, इसमें जैसा कि हम बैच कल्चर में क्या करते थे, हमने मीडियम एक टाइम में डाल दिया, उसके बाद में वही प्रोडक्ट बना रहा है और इन बिटवीन हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंटिन्यूस कल्चर में ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसे इंक्रीज करने के लिए, उसे प्रोलॉन्ग करने के लिए ये वाला फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज इज प्रोलॉन्ग्ड बाय द एडिशन ऑफ द एडिशनल फ्रेश मीडियम इनटू द बायोरिएक्टर और द फर्मेंटर। एक तरफ से इसमें हमेशा फ्रेश मीडियम डाला जाता है और दूसरे साइड से इसका आउटलेट भी होता है एक, वो हम देखेंगे क्यों होता है। नाउ नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज का भी तो टाइम ड्यूरेशन होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि बैच कल्चर से कंटिन्यूस कल्चर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, इट इज़ इंक्रीज्ड, बट अप टू हाउ मच टाइम, कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि हम जो एडिशनल सबस्ट्रेट दे रहे हैं दैट इज़ नॉट एग्जॉस्टेड टिल देन, तब जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होगा तब जाके वो एग्जॉस्ट होगा। अब जो एडिशनल सबस्ट्रेट है वो कब एग्जॉस्ट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द बायोरिएक्टर, दैट हाउ मच कैपेसिटी ऑफ fermentation medium can be introduced into this. Suppose it is of
10 लीटर कैपेसिटी एंड इट हैज़ वन आउटलेट एंड इट हैज़ वन इनलेट. इनलेट से क्या होता है, फ्रेश मीडियम डाला जाता है. आउटलेट से क्या होता है, जो यूज्ड या स्पेंट मीडियम है या जो प्रोडक्ट रिलीज है उसे वहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है. तो जब तक ये जो फर्मेंटर वेसल है वो ओवरफ्लो नहीं होता तब तक कि वो एडिशनल मीडियम जो हम फीड कर रहे हैं उसे देना हम बंद नहीं करते हैं, तब तक कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता चला जाता है. यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, ये जो है वो हमारा एक्चुअल क्या है, कल्चर वेसल है, यानी कि ये हमारा फर्मेंटर है, मेन फर्मेंटर. और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मीडियम सप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश मीडियम. और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम मीडियम को एलिमिनेट भी कर रहे हैं, रिमूव आउट भी कर रहे हैं, ताकि इसका जो कैपेसिटी है वो खाली होता रहे. क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये वाला पोर्शन लगा नहीं होगा तो ये फीड होगा तो क्या होगा, ये तो तुरंत फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो लीक आउट होगा ये फिर. इसीलिए क्या किया जाता है, टू एंश्योर द कंटिन्यूअस कल्चर, फ्रॉम वन साइड द मीडियम इज फीडेड and from the other side the medium is extracted out or eliminated out so that a balance is achieved in the culture vessel. यानी एक तरफ से मीडियम जा रहा है और इससे क्या होगा, हमारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है बैच कल्चर में जो कम होता था वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज जो है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है. इट मीन्स if medium is fed continuously to such a culture, a steady state is achieved. steady state क्या होता है, यानी कि एक बैलेंस कंडीशन आ जाती है. इट मीन्स कि एक तरफ से मीडियम जा रहा है और एक तरफ से मीडियम एलिमिनेट भी हो रहा है, एक्सट्रैक्ट आउट भी हो रहा है. इट मीन्स कि a balanced situation is there and that balanced situation is known as steady state in bioprocess. It means the formation of new biomass by the culture balanced by the loss of cells. एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक तरफ से मीडियम यहाँ पे फीड किया जा रहा है और एक तरफ से रिलीज किया जा रहा है. इसीलिए इन द स्टेडी स्टेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बायोमास इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द सेल्स फ्रॉम द वेसल. एक बैलेंस कंडीशन रहता है एंड दैट बैलेंस कंडीशन इज नोन एज द स्टेडी स्टेट कंडीशन. Now, at steady state condition, the flow of medium into the vessel is related to the volume of the vessel by the dilution rate. तो डाइल्यूशन रेट ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत बार पूछा गया है डीबीटी में, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है. दिस कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स द डाइल्यूशन रेट विच अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द फ्लो रेट एंड द वॉल्यूम. यानी डाइल्यूशन कितना करना है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना फ्लो है, फ्लो किस चीज़ का, जो मीडियम एक्सट्रैक्ट आउट किया जा रहा है या जो एलिमिनेट किया जा रहा है उसका कितना वॉल्यूम हम एलिमिनेट आउट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है डाइल्यूशन रेट. सो सिंपल फार्मूला क्या है, D इज इक्वल्स टू F अपॉन V. मैंने यूनिट भी मेंशन किया है कि किस चीज़ का यूनिट हम किस में बताते हैं, तो यू कैन नोट इट आउट बिकॉज ये पूछा जाता है बायो प्रोसेस को. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, बैच फर्मेंटेशन में भी मैंने बताया, द नेट चेंज इन सेल कंसंट्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड. यानी सेल का कंसंट्रेशन कैसे कम ज़्यादा हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, dx/dt इज नाउ इक्वल टू द ग्रोथ माइनस आउटपुट. अब हमने बैच कल्चर में क्या देखा था, dx/dt क्या था, इनिशियल बायोमास कंसंट्रेशन था. तो जो इनिशियल बायोमास कंसंट्रेशन है it will be equivalent to the growth minus output. It means हम अभी स्टेडी स्टेट की बात कर रहे थे कि जितने सेल्स इन हो रहे हैं उतने ही सेल्स आउट भी हो रहे हैं. इट मीन्स कि जितना ग्रोथ हुआ है हम उसमें से जितना एलिमिनेट हुआ है उसको माइनस कर दे, एंड दिस इज व्हाट dx/dt इज इक्वल टू द ग्रोथ माइनस आउटपुट. सो अभी हमने बैच कल्चर में देखा था स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द माइक्रोबियल बायोमासेस dx/dt इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स माइनस dx, क्योंकि हम डाइल्यूट करके रिलीज आउट कर रहे हैं बाहर उसको. सो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द सेल कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट. यानी स्टेडी स्टेट में हमने देखा था कि इन और आउट वाली जो चीज़ है वो एक जैसी है, जितना सेल इन हो रहा है उतना ही सेल दूसरे आउटलेट से बाहर भी हो रहा है.
इट मीन स्टेडी कंडीशन, तो स्टेडी कंडीशन में dx/dt तो ऑब्वियसली 0 होगा. सो म्यू मैक्स इज इक्वल्स टू dx एंड देन इट इज अल्टीमेटली इक्वल टू दी डाइल्यूशन. यानी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है वो डाइल्यूशन के इक्वल है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट in bioprocess. Under steady state condition, the specific growth rate is controlled by the dilution rate, which is the experimental variable. Steady state condition में अब क्वेश्चन कैसे अराइज होगा वो मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन अराइज होगा कि एट व्हाट कंडीशन दिस म्यू इज इक्विवेलेंट टू द डाइल्यूशन. सो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन म्यू जो है वो डाइल्यूशन के कांस्टेंट हो जाता है, डाइल्यूशन रेट के. और स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट होता है कि हम जितना फीड कर रहे हैं फर्मेंटेशन वेसल में उतना ही एक्सट्रैक्ट आउट भी कर रहे हैं. यानी जितना सेल इन हुआ उतना ही सेल आउट भी हो रहा है. तो इसे D इज इक्वल टू F/V एंड देन दिस dx/dt इन कंटिन्यूअस कल्चर इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ माइनस आउटपुट. आई विल रिपीट एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आपने बैच कल्चर का पहले कैलकुलेशन देखा है, तब जाके आप कंटिन्यूस कल्चर देखिए ताकि आपको समझ आए कि dx/dt क्या है. नाउ दिस क्वेश्चन, इन अ कीमोस्टैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द एग्जिट सेल कंसंट्रेशन. एग्जिट सेल कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो सकता है? तो कैसे इंक्रीज हो सकता है? एग्जिट सेल कंसंट्रेशन कैन बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द इनलेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. यानी आपको जितना हमने अभी देखा स्टेडी स्टेट में कि जितना सेल इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है. तो अगर हमें ज़्यादा आउट कराना है, ज़्यादा मीडियम को बाहर एलिमिनेट करना है या एक्सट्रैक्ट आउट करना है, तो उतना ही ज़्यादा हमें इन भी करना पड़ेगा. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इंक्रीज इन इनलेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, फर्मेंटेशन के 6 कंपोनेंट्स पढ़े और साथ ही साथ हमने पढ़ा अलग अलग प्रोसेस. दैट इज़ हमने बैच कल्चर पढ़ा, बैच कल्चर. उसके अलावा हमने पढ़ा कंटिन्यूअस कल्चर. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द कीमोस्टैट, द टर्बिडोस्टैट एंड जो भी इससे एसेंशियल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे या इक्वेशन होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा जो इन बिटवीन होता है इन दोनों के, दैट इज़ फेड बैच, वो हम देखेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड एंड आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू पीपल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.